নমস্কাৰ অসম আদিত্য নিউজ পৰ্টেলৰ বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানলৈ সমূহ দৰ্শকক মই আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমি এটা বিশেষ বিষয়ত কথা পাতিম, সেইটো হৈছে সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা। সৌন্দৰ্য মানুহৰ সৌন্দৰ্য কেৱল শাৰীৰিক গঠন বা চেহেৰাতেই নহয়, ই এটা আন্তৰিক সৌন্দৰ্য থাকে, অভ্যন্তৰীণ সৌন্দৰ্য থাকে মানুহৰ। এই ধৰণৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা বহু সময়ত আগেয়ে পতা হৈছিল পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত, কিন্তু সেই সময়ত তেওঁলোকে শাৰীৰিক গঠনকহে প্ৰাধান্য দিছিলে, কিন্তু তাৰ পাছত আভ্যন্তৰীণ যিখিনি সৌন্দৰ্য সেইখিনিও তেওঁলোকে বিচাৰক মণ্ডলীয়ে চাব ধৰিলে। তাৰ ভিতৰত ধৰি লওক তেওঁৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা, তেওঁৰ বুদ্ধিমত্তা কেনেকুৱা, তেওঁ বাকী ধৰি লওক সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি কিমান সজাগ, এই বিভিন্ন ধৰণৰ এই বিচাৰক মণ্ডলীয়ে প্ৰথমতে তেওঁক প্ৰশ্ন সোধে। তাৰপিছত এখন মঞ্চত থিয় হৈ সেই সুন্দৰীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰো উত্তৰ দিব লগা হয়। এই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা আজিয়েই নহয়, শ বছৰ আগৰ পৰাই পৃথিৱীত বিভিন্ন ঠাইত হৈ আছে, আৰু এইবিলাক বিশেষকৈ হৈছিলে বিভিন্ন উৎসৱ বা কিবা ডাঙৰ খেল পাতে সেই সময়তে হৈছিলে। যেনেকৈ ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাত মে ডেৰ দিনা মে কুইনৰ বাছনি কৰা হয়, সেইটো খুব ফেমাছ আছিলে। তাৰপিছত কিন্তু আমি যদি বুৰঞ্জীলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম আমি সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা আমি দেখা পাওঁ স্কটলেণ্ডত যেতিয়া এলিংটন টুৰ্ণামেণ্ট হৈছিলে। তাত ডুকেছ অফ ছমাৰছেট জৰ্জিয়ানা ছেইমুৰ, তেওঁ কুইন অফ বিউটি বুলি তেওঁক উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হৈছিলে। তেওঁৰ এডৱাৰ্ড ছেইমুৰ যিজন ডিউকৰ তেওঁ পত্নী আছিলে। তাৰ পাছত আমেৰিকাতো এনেকুৱা এটা প্ৰতিযোগিতা পাতিবলৈ 1854 খ্ৰীষ্টাব্দত এজন মানুহে ফিঞ্চ টেইলৰ বাৰ্নাম বুলি এজন মানুহে চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে সেয়াও তেওঁ বাদ দিব লগা হৈছিলে। এই প্ৰথম আধুনিক এই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিলে আমেৰিকাৰ নিউ জাৰ্চি চহৰত, আৰু সেইটো আমেৰিকান পেজেণ্ট আছিলে। আৰু সেই আমেৰিকান পেজেণ্ট ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈছিলে যে প্ৰথম 1921 চনত যেতিয়া তেওঁলোকে পাতিছিলে, তেতিয়া তাক 1 লাখতকৈও বেছি মানুহ তাত জমা হৈছিলে। তাৰপিছতে তাৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱাবিলাক পতা আৰম্ভ হ'ল, আৰু তাৰপিছতে বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া সৰু সৰু চহৰবিলাকতো, প্ৰদেশবিলাকতো, দেশতো এইবিলাক বিভিন্ন ঠাইত পতা হ'ল। মই এইটো সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা বিষয়টো অনাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে, কিয়নো আপোনালোকে এই সংবাদ পত্ৰত, সংবাদ মাধ্যমত, বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত কেইদিনমান আগতে দেখিছে এগৰাকী অসমৰ কন্যা গীতিকা কাৰুৱা। ক'বলৈ গ'লে তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ কন্যা। তেওঁ মিছ কুইন অফ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড এই সন্মানেৰে তেওঁক বিভূষিত কৰা হৈছিল মুম্বাইত, আৰু তেওঁক সেই মডেল আৰু যিগৰাকী অভিনেত্ৰী মালাইকা আৰোৰাই নিজ হাতেৰে তেওঁক এই ক্ৰাউন তেওঁৰ মূৰত তুলি দিছিল। তেওঁ হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ যোগেশ কাৰুৱা আৰু প্ৰীতি কাৰুৱাৰ একমাত্ৰ কন্যা। আজি আমি গীতিকা কাৰুৱাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ, গীতিকা হ'ল একেবাৰে সৰুৰ পৰাই অসমৰ বাহিৰত থকা। অসমীয়া তেওঁ অলপ বুজি পায়, কিন্তু খুব ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁৰ মনত এটা সংকোচবোধ আছে। গতিকে আমি যিবিলাক কথা পাতিম সেইবিলাক হিন্দীতে পাতিম, আৰু তাৰ মাজত 2-এটা বোধহয় ইংৰাজী শব্দও সোমাব, সেইখিনি আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। গীতিকা, आपको हमारे स्टूडियो में हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद, रियली थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया, एंड मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग भी ऑनर्ड हैं। तो गीतिका, पहले ये हम लोग क्यों कर रहे हैं कि और भी जैसे बच्चियां हैं आसाम में, ये तुमको देखकर वो लोग भी आगे आएगी, वो लोग भी समझेगी कि कुछ कर सकते हैं, तो उनको भी कुछ गाइडलाइन मिलेगा। तो पहले मैं तुमको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तुम क्या कर रही हो? तो अभी मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ, 3rd ईयर। मैं नरसी मुंजी NMIMS बॉम्बे में हूँ, और बस मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और मैं अप्रैल तक कॉलेज से पास आउट हो जाऊँगी। तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आया कि मैं ये ब्यूटी पेजेंट में भाग लूँ?
तो मैं एक दिन, अभी तो सोशल मीडिया की दुनिया है, तो मैं एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देख रही थी, तो मैंने ये पेज को देखा एंड मैं जाके देखी कि इस पेज का मतलब इनका मोटिव क्या है। तो मैंने जब जाके देखा तो मैंने देखा कि ये चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा लोग हो, इंक्लूसिविटी हो, वो सब आए, अप्लाई करे, मतलब वो चाहते हैं कि कोई बार नहीं हो। तो मतलब मेरे साथ साथ मेरे कोई एज नो बार बोलते ना, इसमें वही था। मतलब मैं तो हुई, मैं 21 साल की हूँ, मेरे साथ एक 44 ईयर्स की भी एक लेडी है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे सबको इंक्लूड करने का कोशिश किया। तो मैंने देखा कि इनका एक बहुत अच्छा मैसेज जो था, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, तो मैंने अप्लाई किया। फिर अप्लाई मतलब एक बार कर दिया, मम्मी पापा से पूछ के कि मैं कर दूं, आपको लगता है? तो उन्होंने बोला ज़रूर जाओ, आगे जाओ, करो। और फिर धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट होते गए और इंटरव्यूज़ आते गए और फिर बस क्राउन हो गई। तो इतना अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था ये। नहीं, वो तो हमें भी, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग भी गौरव महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या करना पड़ा, या कोई ट्रेनिंग ऐसी कुछ थी क्या? तो मैंने अप्लाई किया था अगस्त एंड सितंबर स्टार्टिंग में। और उस समय उन्होंने पहली मतलब कुछ कुछ था कि वेट लॉस का थोड़ा सा चक्कर था और फिर डाइट का था। तो मैं अपना काफ़ी वेट लॉस के लिए मैं जिम जाती थी, मैं ट्वाइस अ डे जिम जाती थी, सुबह और शाम। इसका मतलब तुम मोटी थी पहले। मैं जब स्कूल में थी तो बोर्ड एग्जाम्स के कारण मैंने इतना वेट पुट ऑन कर लिया था, मतलब था कि पढ़ते रहो और खाते रहो। तो उस समय ये चला था कि पढ़ो खाओ और कुछ था ही नहीं, पढ़ो खाओ सो। तो उसकी वजह से मैं स्कूल में काफ़ी ओवरवेट हो गई थी। तो उसके कारण फिर मतलब मैं जब कॉलेज गई तो मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे वेट थोड़ा सा कम करना चाहिए। फिर लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन मेरे लिए सच में कहते हैं ना एक आशीर्वाद की तरह आया, ताकि मैं अपने आप पे काम करूं, अच्छे अपने अपने आप पे पूरा काम किया मैंने, अपना वेट लॉस किया। फिर अगस्त में जब ये आया तो मुझे लगा कि और वेट लॉस की ज़रूरत है। तो मैं 2 बार जिम जाती थी, सुबह शाम, यहीं पे डिब्रूगढ़ में ही जिम जाती थी और सुबह शाम जिम करती थी। मैं कड़ी डाइट पे थी, मेरी डाइटिशियन कैलकाटा से है, वो मेरे डाइट पे पूरा ध्यान रखती थी। मैं 2 महीना 3 महीना कड़े डाइट, कड़ा जिम, सब कुछ ये सब किया एंड अपने आप पे काम किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया। मैंने वीडियोस देखा कि कैसे आंसर करते हैं, कैसे सब कुछ चलता है। और फिर जो हमारी टीम थी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया की, काफ़ी अच्छी टीम थी। मतलब हम वी हैव मतलब काफ़ी अच्छे मेंटर्स हमारे, कोकोबेरी करके एक मॉडलिंग एजेंसी है, तो वो हमारे मेंटर्स है, वो हमें मॉडलिंग और कम्युनिकेशन सिखाते हैं। तो वो उन्होंने हमें कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग दी। तो ऐसे धीरे धीरे सब ट्रेनिंग, ये 2-2.5 महीना एकदम कड़ी ट्रेनिंग चली, तो काफ़ी मेहनत गई है इसमें। अच्छा, ये जो ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, अब तुम सपोज इसके लिए अप्लाई की हो, तो क्या क्या जांच होती है? फिजिकल, देन योर वोकेबुलरी, तुम कैसे बोलती हो, किस तरह से? तो सबसे पहले तो वो आपका बैकग्राउंड देखते हैं कि आप कौन से स्कूल से हो, कैसे फैमिली से हो, कहाँ से हो, एकदम वैसे वो आपका बैकग्राउंड अच्छे से देखते हैं। तो और आसाम को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि एकदम एक देयर आर सबसे टैलेंट्स इन आसाम आल्सो। एक सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जो क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया की डायरेक्टर है, हाँ, वो हमारी खुद डिब्रूगढ़ हाँ, से है, डिब्रूगढ़ से, उर्मिमाला बरुआ, आई नो, खुद हाँ, डिब्रूगढ़ से। हाँ, तो असम तो पूरा अच्छे से रिकग्नाइज्ड है। इनफैक्ट मैं और मिसेस कैटेगरी में जो है मलिका बोरा, वो गुवाहाटी से है। हाँ, तो आई नो, असम अच्छे तरीके से एकदम हाईलाइटेड है और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मैं असम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इतने इंडिया में। तो और जैसे आपने पूछा कि क्या वो लोग क्या ट्रेनिंग देते हैं, तो कम्युनिकेशन की काफ़ी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन की, एथिक्स की, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, ये सब का वो एक रहता ना चलन, पॉइज वे, तो वो होने चाहिए कि हम, तो उनकी बहुत ट्रेनिंग हुई हमारी। फिर हमारा रैम्प का, मॉडलिंग की काफ़ी ट्रेनिंग हुई कि, और मतलब 6-6 इंच के हील्स में पहले तो मैंने पहली बार जब पहना तो मैं इधर उधर गिर रही थी। प्रैक्टिस के साथ वो सब इतना, मतलब सच्ची में इतने अच्छे मेंटर्स है कि प्रैक्टिस के साथ सब इतना अच्छा अब हो रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि अभी ऐसे ही अच्छा चलते रहे और मार्च तक मैं और एकदम बहुत अच्छे से प्राउड करके आऊँ एकदम इंडिया को। इसके लिए कुछ स्टडी भी करना पड़ता है क्या? तो ये कहते हैं कि वीडियोस देखना चाहिए, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इतने सारे पैजेंट्स होते हैं, उसमें सब क्वेश्चंस आजकल तो पूछे। यूट्यूब में एवरीथिंग इज राइट, अवेलेबल। तो बस वीडियोस, हम कितने सारे वीडियोस देखते हैं, इतने सारे स्पीचेस देखते हैं। जैसे हमें अभी कितने सारे स्टीव जॉब्स की स्पीच और कितने सारे स्पीच सुनाई है, ताकि हम उनसे लर्न करें। अब हमारे जो मेंटर्स है कम्युनिकेशन में,
वो सच्ची में ऐसा लगता है कि हम वापस स्कूल में आ गए हैं वापस, क्योंकि हम अपना बुक लेके बैठते हैं, वो हमें नए नए वर्ड बताती है, हमें बोलना बताती है कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, हमें अच्छे अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन बताती है, क्वेश्चंस पूछती है जो हमें अच्छे से आंसर करना होता है, और हम वो सब नोट डाउन करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है हम वापस स्कूल में आ गए हैं, और मतलब इतनी अच्छी ट्रेनिंग लगती है कि वो हम हर दिन मतलब 2 घंटा 1.5 घंटा के आसपास बैठते हैं, पर हर दिन बैठते हैं। तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है कम्युनिकेशन की। और मॉडलिंग की हमारी ट्रेनिंग, मतलब अभी मैं बॉम्बे ही गई थी हाल, मतलब 10 दिन पहले, और हमारी एकदम कड़ी ट्रेनिंग चली है, 10-12 दिन कड़ी ट्रेनिंग, जहाँ पे मैं सुबह उठती थी 8 बजे, जाती थी मॉडलिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, और वापस आती थी रात में 9 बजे, और एकदम थकी हारी आती थी, बट मन में सेटिस्फैक्शन होता था कि अच्छे से मैं ट्रेन करके आई हूँ। दैट्स गुड। अच्छा, तुम लोग का ये ऐसा होता है कि तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह है, वो सब भी वो लोग कुछ नापते हैं इस तरह से? जैसे मैंने बोला कि इनमें इसमें वो जैसे मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स या वो सब में होता है ना? इसमें मतलब वो रहता है कि एक जगह तक मतलब कुछ ज्यादा ओवरवेट भी नहीं हो सकते हैं, मतलब आप सिलेक्टेड हो, बट फाइनल्स के लिए आपको रिड्यूस करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में होगा, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आएंगे। तो आपके लिए ही अच्छा है, बेहतर है अगर आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे, तो आपके ही चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। पर क्वीन ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंक्लूसिविटी है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं वो आए, इसमें पार्टिसिपेट करे, और कोई डर नहीं रखे अपने मन में कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ या क्योंकि मैं इस वेट की हूँ। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आए और हम आप पे काम करेंगे, हम आपको सिखाएंगे। और पता है, जब आप रिजल्ट्स देखना स्टार्ट करते हो ना कि अच्छा आज अब मैं ये जीत गई हूँ, तो वो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है कि मुझे करना है। तो यही मोटिवेशन के साथ वो कहते हैं कि वेट रिड्यूस करो तो आपके लिए ही अच्छा है, आपका ही चांसेस वर्ल्ड में जीतने का ज्यादा है। तो ये उस तरीके से चलता तो है। बॉडी का साइज को लेके कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है? एज सच क्राइटेरिया नहीं है, बट इट्स ऑलवेज, मतलब ये हर समय अच्छा है कि अगर आप थोड़ा सा मेंटेन रखो अपने आप को, फिजिकली फिट रहो, तो लगेगा कि हाँ फिजिकली फिट हो, और फिजिकली फिट मतलब आप मेंटली फिट भी हो, मतलब आपका सब कुछ फिट है। एग्जैक्टली दैट्स वेरी एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट। यस। तो इसमें लैंग्वेज का कुछ बार है क्या? सो नो, लैंग्वेज कोई बार नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बोलो। पर आसाम से कोई लड़की गई है, वो असमीज में बात बोलना चाहती है, तो सबका ट्रेनिंग मिलेगा आपको, सबका ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। तो जज कैसे समझेंगे कि ये? आई एम श्योर आपको सबका ट्रेनिंग, जैसे अभी हम जा रहे हैं तो वी हैव सम गर्ल्स हु आर नॉट रियली कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, पर जैसे मैं कह रही हूँ हमारा कड़ा ट्रेनिंग चल रहा है, हर दिन कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होती है। तो वो हमें मतलब ये क्वीन ऑफ द वर्ल्ड भी ऐसा है कि वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट, मतलब ऐसे नहीं करेंगे जो बोल नहीं पाते हैं, मतलब जो मतलब अपने लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है। पर अगर आप कंफर्टेबल, आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, वो अपने आप वो उसको ऐसे लेके आपको सिखाएंगे कि आप इस तरीके से बोलो, आप ऐसे बोलो, और अपने आप जब आप सीखोगे आपको समझ में आएगा, खुद वो अपने आप मेंटोर हो जाता है। और खुद मतलब जैसे आप बोल रहे कि सैम से कोई, तो उन्हें भी सिखाया जाएगा कि आप इंग्लिश में ऐसे बोलो, ऐसे आंसर देना है। और वो कुछ कुछ तो क्राइटेरिया होती है, तो उन क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए वो एकदम वैसे ही लेते हैं। नहीं, अभी जैसे अमेरिका में ब्यूटी पेजेंट होगा, वहाँ तो इंग्लिश में होगा। राइट। तो एक जो फ्रांस से लड़की गई है, वो फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच में बोलेगी, तो वो तो जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ही होगा कि ठीक है, आप अगर 70% फ्रेंच में कॉन्फिडेंट हो, आपका 30% भी तो इंग्लिश कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो सबको बैलेंस आउट करके आई एम श्योर कि जजेस हमारे इतने अच्छे आएंगे, वो कुछ ना कुछ तो हो गए कि वो समझ जाएंगे कि 30% उनका भी क्राइटेरिया है कि आप 30% इंग्लिश जानो, ताकि जजेस को भी इजी हो, उनको भी जज करने में फेयर एक वो होता है ना, वो फेयर मद्दा हो। अच्छा, ये कंपटीशन हम लोग की जानकारी के लिए किस तरह से होता है? वहाँ कोई रूम के अंदर जजेस बैठे रहते हैं, या स्टेज में होता है, या किस तरह से होता है? तो ये मेरे पहली बार एक पैजेंट में है, तो मैंने तो अभी जो भी किया है सब ऑनलाइन था। कोरोना की वजह से मैं सेकंड वेव के बीच में ये सब कर रही थी, तो ये जो भी हुआ है सब ऑनलाइन हुआ है। तो मेरा तो सारा सब कुछ जूम कॉल में हुआ है, और मेरा सब कुछ जैसे जूम कॉल, कभी कोई MS टीम्स, कभी गूगल, तो सब ऐसे हुआ है, कभी कोई इंटरव्यू ऐसे। पर जब अब मैं अभी गई बॉम्बे सहारा स्टार में था, तो हमारे मतलब जैसे हमें बताया गया है, काफ़ी सारे राउंड्स होंगे,
न्यू जर्सी में काफ़ी सारे राउंड्स होंगे। और जैसे कि, हाँ। जैसे एक मॉडलिंग राउंड रहेगा जहाँ पे आपको अपना मॉडल करके दिखाना है। एक आपका कम्युनिकेशन राउंड रहेगा जहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको वो उसी समय उसी मिनट आंसर करना है, और जिस तरीके से आप आंसर करो वो वैसा एक जैसे होगा। हम लोग मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड में एकदम देखते हैं, वैसा हाँ? ही वैसे ही Same. एक ट्रेडिशनल राउंड होगा कि आप अपना अपना मतलब वो हमें टीम देगी कि आपको कौन से अपना एक ट्रेडिशनल वेयर, आप अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए वो एक ट्रेडिशनल राउंड होगा। आप उस इंडियन वेयर को कैसे कैरी करते हो, कैसे चलते हो उसके साथ, जितना भी हैवी हो, कितना कितना क्या महसूस करके आप चल रहे हो। तो ये सब वो मतलब वो एक चीज नहीं देखते, वो 10 चीज देखते हैं, वो 10 चीज को सोच के फिर वो विनर सोचेंगे। तो उसमें कोई ड्रेस कोड भी होता है क्या? तो अब हमारे इतने सारे राउंड्स हैं, सब राउंड्स के ड्रेस कोड आएंगे, अभी तक आया नहीं, अभी तक आइटनरी हमें मतलब अभी हमारी ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है एंड आई थिंक जनवरी तक हमारी आइटनरी आ जाएगी। तो उसमें सारी ड्रेस कोड हर दिन क्या क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ से 4 मार्च को निकलूंगी, 7 मार्च को मेरी सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो 7 मार्च से 11 मार्च तक कुछ ना कुछ राउंड्स होते रहेगा, कुछ ना कुछ ड्रेसेस पहन के कॉम्पिटिशन्स होते रहेंगे और वो सब उस पर जज करेंगे। तो अब वो जनवरी तक आ जानी चाहिए। तो ये असम का जैसे हम लोग मेखला चादर ये सब भी वहाँ चलेगा? एकदम चलेगा। आई थिंक हाँ, जो ट्रेडिशनल good. राउंड होगा उसमें हमें बोला जाएगा कि आप अपने जिस स्टेट से आ रहे हैं उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए आप अपना ट्रेडिशनल वेयर पहनो। तो मैं तो खुशी खुशी असम के लिए पहनूंगी, उससे ज्यादा गर्व की बात That's क्या great, है। that's great, that's great. तो तुमने और भी सोचा है क्या, जो असम मतलब इस कंस्टिट्यूट 7 सिस्टर्स, राइट। जैसे नागालैंड है, अरुणाचल है, मणिपुर है, ये सब ड्रेसेस? तो जैसे हम इंडिया है, इंडिया में हम जितने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उतना अच्छा। अगर मैं असम से हूँ, दो लोग बॉम्बे से हैं, तो कोई मणिपुर से, कोई कर्नाटका से है, तो हम अब वर्ल्ड में जा रहे हैं इंडिया सोच के। हम असम अभी इंडिया में रिप्रेजेंट किया, अब हम वर्ल्ड में जा रहे हैं इंडिया को सोच के। बिगर वे में सोचना Right. पड़ेगा कि वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो हम जितना स्टेट्स को, हमें जितना मौका मिले कि जितने स्टेट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं तो वही चाहूंगी उतना रिप्रेजेंट होए। तो उतनी ड्रेसेस आप लेके जाओगे? नहीं नहीं, वो तो टीम देगी, वो तो टीम देगी। जो हम 4 है तो हम 4 में से हम चार ही पहन पाएंगे। तो जो 4 स्टेट्स होंगे वो हमें बताया जाएगा कि आप कौन सा पहनोगे, वो सब टीम डिसाइड करती है। पर अच्छा, वोकेबुलरी में आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट आप बोले कि चुने, किस तरह का सब्जेक्ट आप जरा बताएंगे? वोकैबुलरी एज इन हमें कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में Communication में अंजलि राउत करके कोकोबेरी में, शी इज अ मेंटोर। तो वो हमें पहले तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी कोई माउथ एक्सरसाइजेस से, ताकि जो बोली हो वो ढंग से निकले, आपकी माउथ की मूवमेंट ढंग से हो। फिर उसके बाद हम जाते हैं, वो हमें कुछ कुछ वर्ड्स देती है ताकि हम जब बात करें तो नए नए वर्ड्स आए, अच्छे अच्छे वर्ड्स आए, तो जो सुनने वाला लगेगा उसे भी लगेगा कि हाँ ये जानती है, अच्छा अच्छे से बोलती है। फिर उसके बाद वो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस पूछने के बाद हमें उसी मिनट आंसर करना है, उसी मिनट सोच के आंसर करना है। तो हम ऐसे वैसा वो नहीं कर करें, हाँ, ताकि वो हाँ। दिखे कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप बोल सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो वो एक हमें सिखाते हैं कि कैसे ऑन द स्पॉट आंसर करना है। और ऑन द स्पॉट आंसर तो करना ही है, प्लस 6 इंच हील पहन के खड़े होके कितना, आई थिंक 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े होके सबके को क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो तब तक खड़े होके आंसर करना है। तो अभी हमें वो भी प्रैक्टिस कराया जाएगा कि 6 इंच हील पहन के खड़े होके 1 घंटा वेट करो जब तक सबकी आंसर्स नहीं निकल जाए। तो हमें वो पेशेंस भी सिखाया जा रहा है साथ में। उसके अब अलावा हमें काफ़ी कुछ लिखने भी बोलते हैं, जैसे करंट अफेयर्स जितने सारे आ गए हैं, सब करंट अफेयर्स के बारे में हमें वो एजुकेट करते हैं। वो हमें पढ़ने बोलते हैं उनके बारे में, वो हमें उनके बारे में कहने बोलते हैं क्लासेस में। तो इस तरीके में हमारे कम्युनिकेशन भी हो रहा है, साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ भी हम अप टू डेट रहते हैं। अच्छा, ये लोग मतलब ट्रेनिंग देते हैं, मतलब जैसे इसमें और कुछ सब्जेक्ट आता है, जैसे पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल अफेयर्स है, ऐसा कुछ है? तो जैसे मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन में वो सारा अफेयर को कवर करने का कोशिश करते हैं। तो अभी हमने बस स्टार्ट किया कि हमारे इंडिया के करंट अफेयर्स से, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या इश्यूज है, उसके बारे में थोड़ा मतलब उसके बारे में 1 मिनट ही उतना ही बोलना पड़ता है। तो 1 मिनट के जितना तुम अपना पर रिसर्च करके रखो, क्योंकि जो भी जज है वो आपको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको अपनी रिसर्च अच्छे से जानने पड़ेगी कि आप बस रट के नहीं जा सकते और बोल सकते हो, वो आपको इनर में जानना पड़ेगा कि आप ये जानते मतलब एक
वाइड नॉलेज होना वाइड पड़ेगा, नॉलेज सब wide चीज knowledge के होना बारे में। बस पड़ेगा, आप हाँ। वो बोलते हैं ना रट्टा करके जाओ और बोल दो, वैसा एकदम नहीं है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा आपने ये बोला, इसका मतलब क्या है, आपका मतलब क्या है मतलब थोड़ा इसमें। डेप्थ ऑफ नॉलेज, एकदम डेप्थ ऑफ बहुत नॉलेज। जरूरी है वो। अच्छा, इसमें ऐसा भी है क्या, जैसे आप मतलब सोशली आप क्या काम कर रही है क्या नहीं, ये सब देखा जाता है क्या? जरूर देखा जाता है। जैसे हमारी एक जो एलीट मिसेस क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया है, जो बॉम्बे से है, वो एक स्कूल में पढ़ाती है। वो एक नॉन प्रिविलेज स्कूल में पढ़ाती है, जहाँ पे वो बस जाके बच्चों को हर हफ्ते 2 बार जाके पढ़ाती है। तो ये सोशली काफ़ी देखा जाता है। तो मैं भी ये सोशल में काफ़ी इन्वॉल्व होने का कोशिश करती हूँ। कैसे, आप किस तरह से सोशल वर्क में जैसे इन्वॉल्व है? मैं असम मेडिकल कॉलेज में जाके, मतलब एएमसी में जाके काफ़ी बार जो वहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं उन्हें जाके मैं खाना देती हूँ। मैं उन्हें जैसे मेरे बर्थडे पे हो या कोई बड़ा त्योहार हो, तो वहाँ पे जाके उन्हें खाना दो, भले ही बिस्किट, जूस, केक, ये 3 चीज़ उन्हें जाके दे दिया। उनकी जो खुशी दिखती है ना चेहरे में, वो देख के बस खुशी मिलती है कि ये ऐसा काम करने से ऐसे खुशी मिलती है। एंड फिर मैं जब स्कूल में थी तो मैं एक हैंडीकैप्ड उसमें जाती थी, हाउस में, जहाँ पे मैं बच्चों, जो हैंडीकैप बच्चे और बुजुर्ग रहते थे, मैं उनके साथ खेलती थी, उनके साथ इन्वॉल्व रहती थी। तो मैं हर हफ्ते 2 घंटे के लिए उनके वहाँ जाती थी। ये सब रिकॉर्ड्स उनको दिखाना पड़ता है क्या? ऐसा चाहिए कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप दिखाओ सोशल, पर अगर आप हो गए, अगेन वो आपके ही एडवांटेज में होगा। वो देखेंगे कि ये सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं करती है, ये सिर्फ मतलब उसके अंदर सिर्फ बोलने और वॉकिंग का क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर एक जो सोशल क्वालिटी है वो भी है, जो वो लोगों के बारे में केयर करती है। तो वो आपके एडवांटेज में हर समय यूज तो होगा। अभी तो आपने ऑनलाइन किया, जब आप फेस करेंगे तो नॉर्मली कितने जजेस रहते हैं? अभी पैनल में तो हमने जहाँ तक जितने वीडियोस देखे हैं, अभी हमें इतना कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रिवेसी रहते हैं। तो हमें अभी जितने वीडियोस ये सब वगैरह देखे हैं, तो उसमें कम से कम 5 to 7 जजेस तो रहते हैं। 5 to 7 जजेस। एंड डिफरेंट राउंड्स रहते हैं, तो हर राउंड के लिए आई थिंक डिफरेंट जजेस होंगे। तो इसमें आपको पब्लिक को भी फेस करना पड़ता है क्या? काफी पब्लिक, मतलब अच्छा? ऑडिटोरियम में रहेगा, तो काफी, मतलब न्यू जर्सी में रहेगा, हाँ। तो फैमिलीज तो आएंगे ही, बट फैमिलीज के साथ साथ काफी लोग न्यू जर्सी के आके हमें देखेंगे। और जैसे कहते हैं कि ऑडियंस का प्यार रहता है, तो जब जजेस भी देखेंगे कि हाँ, इन्हें ऑडियंस इतना प्यार करती है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है। तो अब आप जब प्लान कर रहे हैं न्यू जर्सी जाने का मार्च में, हाँ। तो मार्च की कौन सी तारीख को ये पेजेंट हुआ? तो मैं जा रही हूँ 4 तारीख को, पर जहाँ तक है ये स्टार्ट होगा 6-7 तारीख, 7 तारीख से स्टार्ट होगा, और मेरा फिनाले 11-12 के आसपास है। ये डेट्स अभी तक वो जनवरी में सब डिस्क्लोज करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं 7 तारीख को जाऊंगी और 12 तारीख को मेरा फिनाले होगा। तो ये 1 हफ्ता ऐसा तो अभी आप 3 महीना इसके लिए पूरा रिहर्सल करते रहेंगे? एकदम एकदम, मतलब बेस्ट टीम है हमारे पास। मतलब हमारे पास डॉक्टर वरुण कटियाल है, जो बेस्ट डाइटिशियन इन इंडिया है राइट नाउ। वी हैव कोकोबेरी के जो ट्रेनर्स है, वो बेस्ट ट्रेनर्स है इंडिया के, अगेन मॉडलिंग के लिए। तो वो एजेंसी हमने ली है। हमारे पास डॉक्टर वरुण कटियाल है, हमारे पास डॉक्टर मिकी मेहता है, जो एक लाइफ कोच है, योगा सिखाते हैं। तो इन बेस्ट टीम के साथ तो हम बस यही आशा करते हैं कि बस वर्ल्ड में इंडिया अच्छे से रिप्रेजेंट हो और नाम रोशन करके आऊँ मैं। नहीं, एक बात और इसमें आता है, ये तो सारा प्रोसेस काफ़ी खर्चीला है कि कम खर्च पे भी हो सकता है? तो जो ये सब है, ये सारा टीम हैंडल करता है। ये क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया जो टीम है, वो इन सब प्रोसेस के लिए पे और ये सब वगैरह चलता है। तो एज सच हमें इतना आइडिया नहीं है पेमेंट का, बिकॉज वो सब बैक हैंड एट द वर्क टीम कर रहा है। तो हमारा वो कर कुछ रहे ऐसा हैं, नहीं आप लोगों का कुछ नहीं हमारा है। कुछ इसका मतलब कोई गरीब लड़की भी कोशिश करे तो वो जा सकती है, डेफिनेटली। क्योंकि असम में टैलेंट की तो कमी नहीं है। अभी तो Talent- ओलंपिक जीत के आ गई है। ओलंपिक जीत के आगे इनफैक्ट। और बात करें पैजेंट्री का, मॉडलिंग का, तो शोज में अब रनर अप अरुणाचल प्रदेश से, विनर सिक्किम से है। तो नॉर्थ ईस्ट की क्या बात है, मतलब नॉर्थ ईस्ट अब शान में है कि विनर्स अब ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो ये गर्व की काफ़ी बात- एक्सपोजर मिला है नॉर्थ जरूर। ईस्ट को। तो अभी वहाँ आप, मतलब वो लोग बताते हैं कि आपको किस तरह से होगा वहाँ पर न्यू जर्सी में जो होगा, या पहले जो न्यू जर्सी इज द ओल्डेस्ट, मैंने जो बोला 1921 से वहाँ अमेरिका पेजेंट जो चल रहा है, तो वहाँ का आपने वीडियो देखा है किस तरह से होता है वहाँ?
तो क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के वीडियो अभी ये आई थिंक न्यू जर्सी में पहली बार हो रहा है, अदरवाइज पहले कहीं और होता था। हाँ, वो पहले मतलब अमेरिका पेजेंट होता अमेरिका था। पैजेंट तो हाँ। मैंने दूसरे पैजेंट्स का देखा है जिस तरीके से होता है, वो देख के ही मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब असली में मतलब देखना, मतलब वो इतना बड़ा स्टेज होता है, वहाँ पे वॉक करना और सामने इतनी बड़ी ऑडियंस रहती है, उस कॉन्फिडेंस में वॉक करना, निडर होके वॉक करना, वो सब सीखने लायक होता है। तो ये सब वीडियोस में तो मैंने यही सीखा है, और बाकी अब मैं जाके देखना चाहती हूँ कि क्वीन ऑफ द वर्ल्ड अलग हटके क्या होता है अब। तो आप वो 6 इंची हील पहन कर घर में भी प्रैक्टिस हमें प्रैक्टिस करने तो कहा गया है एकदम, मैं एकदम हर दिन 6 इंच हील पहन के टक 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 करती हूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि ये वॉक इतना आसान हो जाए कि बस मैं मार्च तक कह सकूँ कि मैं इसमें ही जी सकती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने ये पेजेंट जीता, आपको कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप ओके न्यू जर्सी जाके भी आप यू विल विन? तो देर आर मतलब यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आएंगे। हाँ। और अभी मैं देख रही हूँ आज ओलंपिक में भी ऑल ओवर वर्ल्ड से आए थे, लवलीना बोरागोहन ने वहाँ जीता ही है। जीता एकदम, वो हाँ। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हाँ। पर वो कहीं ना कहीं वो जैसे मैं असम को रिप्रेजेंट करते करते अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने चाह रही हूँ, तो वो मन में वो प्रेशर ऑब्वियसली है। पर मैं इतना जानती हूँ कि जैसे असम को मेरे पर फेथ है और इंडिया को मेरे अंदर बिलीफ है कि मैं कर सकती हूँ, और मेरे मम्मी पापा को मेरे पे है, तो मैं क्यों नहीं अपने आप पे बिलीव करूँ कि मैं कर सकती That's हूँ। great. इसी एटीट्यूड के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं जाना चाहती हूँ, और इसी एटीट्यूड कॉन्फिडेंस के साथ और एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ मैं सब बस अच्छे से करके जीतना चाहती हूँ। आप जब जाती हैं मन में थोड़ा सा डर भी रहता है क्या? जरूर, मतलब मैं जो पहली बार अभी स्टेज वॉक कर रही थी, मुझे मतलब पैर जैसे कांपते ना, पर कांप नहीं सकते क्योंकि आपको वॉक करना है, अगर कांपेंगे तो आप इधर उधर हो जाएंगे। तो मैं अपने अपने दिल में, कहते ना वो मूवी था 3 इडियट्स में जब ऑल इज वेल, तो मैं सच्ची में वो कर रही थी, हम सब बैक स्टेज वो कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी और ये तो मेरी फर्स्ट टाइम है, तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी। पर एक बार जब मैं स्टेज पे गई और मैंने देखा कि मुझे सामने मलाइका अरोड़ा देख रही है और बगल में डॉक्टर मधु चोपड़ा दिख रही है जो प्रियंका चोपड़ा की मदर है, और ईशा कोप्पिकर और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मुझे देख रहे हैं, वो अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इनके सामने आज हूँ तो कुछ तो सही हो रहा है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वॉक किया, और उसके बाद मैं जब बैक स्टेज गई, वो फीलिंग मैं कभी भूल नहीं सकती, इतना अच्छा फीलिंग था वो। आप जिस पेजेंट में अभी एक किताब लेके आए हैं तो उसमें कितने कंपटीटर थे? मतलब जो एप्लीकेशंस थे, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया। मतलब हमें नंबर एज सच बताया नहीं गया कि इतना नंबर, बट जितना मैंने इंटरव्यूज दिए, जितना मैंने देखा, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया। तो हमारे तो बैचेस में होते थे, एक बैच में ही इतने सारे थे, तो मुझे पता नहीं और बैचेस में कितने होंगे, कितने बैचेस होंगे। पर हमें हमारी सीईओ ने यही बताया कि आप लकी हो कि आप सिलेक्ट हो रहे हो, अब आपको प्रूव करना है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इतने सारे, और उसमें आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर है कि आपको अच्छा करना है। जब आप वो मलाइका अरोड़ा के सामने या जो भी मॉडलिंग कैटवॉक कर रही थी, हाँ। उसमें कितनी बच्चियां थी या कितनी लेडीज थी? तो मेरे सामने काफ़ी मतलब हमारा डॉक्टर मिस ओजस रजनी, शी इज़ अ वेरी बिग मेकअप आर्टिस्ट, वो उन्होंने मेरा मेकअप किया और वो मेरे सामने बैठी है। मलाइका अरोड़ा बैठी है, ईशा कोप्पिकर, डॉक्टर मधु चोपड़ा, एंड ऐसे काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, और ये सब एक लाइन में बैठे हुए थे, और हम बस मतलब आई कांटेक्ट उनसे हो रहा था, वही कितनी बड़ी बात हो रही थी मेरे लिए। तो जब वो लोग तो अनाउंस करते हैं ना कि यू आर सिलेक्टेड। यस, मतलब अनाउंस एज हमें वो उन्होंने 10 दिन पहले बता दिया था, अच्छा। ताकि 10 दिन हमारी ट्रेनिंग हो। हाँ। 10 दिन हमारी मतलब स्टेज पे कैसे जाना है, क्या एटीट्यूड उसके साथ जाना है, 10 दिन हमें 10 दिन पहले बता दिया था, और हमें सिग्नेचर एनडीए फॉर्म साइन करवा लिया था दैट यू कांट डिस्क्लोज, बिकॉज फिर 8th का मजा ही चला जाएगा। तो उसकी वजह से हमने 10 दिन अच्छे से प्रैक्टिस की, तो मुझे अक्टूबर एंड में ही पता चल गया था कि मैं क्राउन होंगी, पर वो बात सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मुझे पता था, और डिस्क्लोज नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। राइट। जब आपको क्राउन दिया, उस टाइम का थोड़ा सा फीलिंग बताएंगे आप? एकदम, तो मेरे सामने मलाइका अरोड़ा, वो मुझे क्राउन पहना रही है, और मैं बस उसे देख रही हूँ कि ये सच्ची में मुझे पहना रही है। मैं शॉक में चली गई कि ये सच में हो रहा है। मैं
मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे, मैं भूल गई मुझे क्राउन पहना, क्योंकि मलाइका अरोड़ा इतनी सुंदर है, मैं तो देखते रह गई उन्हें। पर जब उन्होंने मुझे क्राउन पहनाया और वो पीछे से अनाउंस कर रहे थे कि गीतिका करवा क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया 2021, ये सुन के इतना अच्छा लगा। मैंने दूर से अपने मम्मी पापा को देखा, दोनों के आंख में आंसू। उससे अच्छा कि वो मेरे लिए खुश है, ये खुशी के आंसू आपके है। मम्मी पापा वहाँ थे? मेरे मम्मी पापा थे, मेरे मामी थी, मेरी बहन थी, मेरी बुआ थे, ये सब आए थे उधर। तो उन्होंने उन्हें देख के, वो खुशी देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और इतने बड़े पर्सनालिटी से मैं क्राउन हो रही हूँ, ये मेरे लिए इतना, मतलब ये इतना ऑनरिंग मोमेंट था मेरे लिए, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी वो। दैट्स ग्रेट। सो आपकी ज़िंदगी में ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है, जरूर। और अचीवमेंट सिर्फ आपका नहीं है, ये इंडिया का अचीवमेंट है, हम लोग आसाम पूरे का, असम के लिए। असम का, पूरा नॉर्थ ईस्ट का अचीवमेंट है, डिब्रूगढ़ का अचीवमेंट है। यू आर ए गर्ल फ्रॉम डिब्रूगढ़, वी हैव सीन यू वेरी इन यंग स्टेज। सो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा ये करने का यही था कि यहाँ की और भी बच्चियाँ इनकरेज हो इसके लिए और आगे आए, ताकि वो भी इस पेजेंट में आगे जाके भाग ले। तो इसीलिए आपसे ये बात की। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और न्यू जर्सी में हम लोग प्रे करेंगे कि आप अमेरिका पेजेंट भी, मतलब वर्ल्ड पेजेंट भी आप जीत के लाएं। ये हमारे लिए बहुत मतलब अच्छा होगा, हमें बहुत गौरव होगा। আমি এতিয়া বিদায় ল'ম। আমি গীতিকা কৰাৰ পৰা এই যিটো সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা পাতিলোঁ, আৰু আমাৰ এনেকুৱা বহু ছোৱালী আছে যিসকলে বোধহয় ভাবি থাকে মনতে এনেকুৱা এই প্ৰতিযোগিতাত আগবাঢ়ি যাওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো বাট নাপায় যে কেনেকৈ কৰিম কি নাই। গতিকে গীতিকাৰ পৰা আমি বহু কথা গম পালোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও আমি তেওঁক ষ্টুডিঅ'লৈ মাতি আৰু কিছুমান কথা সুধিম। আৰু অহা মাৰ্চ মাহত যি আমেৰিকাৰ নিউ জাৰ্চি যি প্ৰতিযোগিতা হ'বলৈ গৈছে, তাৰ বাবে আমি সদৌ অসমবাসী আৰু সদৌ ভাৰতবাসীয়ে আমি গীতিকাক আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।